Now all of you see derivation of formula. Mirror's formula. Mirror formula क्या है? 1/u plus 1/v equals to 1/f. F is what? Focal length. U क्या है? Object's distance from the pole. मतलब यहां पर क्या हो जाएगा डायग्राम में? PO हो जाएगा. V है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डायग्राम में क्या हो जाएगा? PI. अब देख लो, दिस इज ए कॉन्केव मिरर M1 M2 and an object OO dash is placed upright on the principal axis. तो एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से. And another ray which passes through center will retrace its path. तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, BO डैश है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये तुम्हारी है, कहां कट कर रही? यहां पर. मतलब इस पॉइंट की इमेज कहां बन रही? यहां पर बन रही. आए सोचे? इसी तरीके से इसकी इमेज I पर बनेगी. तो OO डैश की इमेज क्या हो गई? II डैश. I something. Now you can see here triangle COO dash and triangle CII dash both are similar. Both the triangles are similar. Triangle OO dash and CII dash both are the similar triangles. Now you can see here this angle is equal to this angle 90 degree. These two are vertical opposite angle. It's clear. Therefore, both the triangle will be similar. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स रिमेन सेम. दैट इज OO डैश अपॉन II डैश इक्वल्स टू CO अपॉन CI. ये एक रिलेशन मिल गया. Similarly, you can see triangle. From here, A, draw a perpendicular on the principal axis, say AN. Now triangle ANF and triangle FII dash are similar. ये वर्टिकल अपोजिट, ये क्या हो गए? 90. तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए. ट्रायंगल ANF and triangle FII dash are similar. This is clear. And when you can see here triangle ANF similar to triangle FII dash. और जब ये सिमिलर हो गए तो रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी. यू कैन सी, अगर हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखें तो वो यहां पर बराबर हो जाएगा. कैसे बराबर हो जाएगा? AN क्योंकि सिमिलर है, AN अपॉन II डैश इक्वल्स टू NF अपॉन IF. तो वही AN अपॉन II डैश इक्वल्स टू FN अपॉन FI. Now AN will be equal to OO dash. क्यों? Because this is parallel to this. तो पैरेलल रीज के बीच की डिस्टेंस हरदम क्या होती है? It remain fixed. Therefore AN equals to OO dash. So here in place of AN you can write OO dash. OO dash upon II dash equals to FN upon FI. Now this is the relation 2. So if you combine both the relation 1 and relation 2, you can see here. This is the relation 1 and this is the relation 2. If you see here, दोनों की LHS क्या है? बराबर है. रिलेशन 1 और रिलेशन 2 की LHS क्या है? बराबर है. और LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगी? बराबर होंगी. मतलब CO अपॉन CI equals to FN upon FI. CO upon CI equals to FN upon FI. Now you can see here, if the aperture of the mirror is small, then point A will be close to the point P. Point A will be close to the point P. Now you can see
If the aperture of the mirror is small, then point A will be close to the point P. It will be somewhere here. And when you will draw the perpendicular, then N and P will be very close to each other. N ये वाला point हो जाएगा, ये point अब N हो जाएगा. अगर aperture small है, तो A point P के पास में होगा, suppose यहाँ पर होगा. तो अब जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जिसको हमने n से डिनोट किया है, इट विल बी वेरी क्लोज टू द p, देयरफॉर n एंड p कैन बी टेकन एज सेम पॉइंट. समझ में आ गया? सो सी हियर, इफ aperture of mirror is small, then point A will be close to point P. Point A will be close to the point P. And then point N will be very close to P. Therefore, N and P can be taken as same point. Can be taken as same point. दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? सेम पॉइंट हो जाएंगे. N and P treated at the same point. ये चीज समझ में आ गया? अब देख लो, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? Therefore, from 3, this we have taken as 3. This relation can be taken as 3. Therefore, CO upon CI equals to FP upon FI, या ऐसे लिख सकते PF upon FI. ऐसे ये हमको रिलेशन N के प्लेस में हमने क्या ले लिया? P ले लिया. अब देखो हमको कौन सी डिस्टेंसेज पता है. एक तो पता है PF. PF क्या होगा? विद साइन. Here I am writing this expression on this page. This is the relation CO upon CI. CO upon CI equals to PF upon FI. PF upon FI. देख लो हमको कौन कौन सी डिस्टेंसेज पता है. हमको पता है PF पता है. बताओ PF विद साइन क्या होगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट से मिरर. सो PF क्या हो जाएगा? -F. PC क्या हो जाएगा? -R. और -R को क्या लिख सकते हैं? -2F. What will be PO? PO equals to -U, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, and PI equals to -B. Now all of you see here, ये चार डिस्टेंसेज हमको नोन है, ये चार डिस्टेंसेज मालूम है. ये जितनी भी लेंथ्स हैं इनको इन्हीं डिस्टेंसेज में चेंज करना है, स्प्लिट करके लिखना है. तो देख लो CO इतना है, सब लोग देख रहे हैं. CO ये, CO ये, इसको क्या लिख सकते हैं? PO माइनस PC. PO भी पता है और PC भी पता है. लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख दिया PO ऑन रीअरेंजिंग
the terms of equation 4. So ये क्या हो जाएगा, PO माइनस PC. अब देख लो CI कितना है, CI यहां से यहां है, क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PI, PC माइनस PI, वो क्या हो जाएगा, CI के बराबर. समझ में आ गया? This point is clear. PC minus PI equals to PF. PF already known distance है, ये यहां लिखा है. And FI. FI is this much. So what is FI? It is PI minus PF. It's clear? So PI minus PF. ये हमको रिलेशन मिल गया. Now see here, now you substitute the value PO minus U, PC minus 2F, PC minus 2F, PI minus B, PF is minus F, PI is minus B, minus PF is minus F. Simplify करें, minus U plus 2F, minus 2F plus B equals to minus F upon minus B plus F. आया समझे? Now we will cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, माइनस U plus 2F एंड माइनस B plus F. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, multiplying minus U plus 2F माइनस B plus F इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में माइनस 2F प्लस B, ये हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया. अब ओपन कर दे ब्रैकेट को, तो माइनस U इंटू माइनस B दैट इज UV, माइनस U इंटू F दैट इज माइनस UF, 2F इंटू माइनस B माइनस 2FB, 2F इंटू F 2F स्क्वायर, माइनस F इंटू माइनस 2F इट इज 2F स्क्वायर, माइनस F इंटू B माइनस FB. कैंसिल आउट किया तो 2F स्क्वायर क्या हो गया, 2F स्क्वायर कैंसिल. आया समझे? ये क्या है, UB माइनस UF माइनस 2FB इक्वल्स टू माइनस FB. आया समझे? हमने क्या किया, ये जितने भी टर्म है निगेटिव वाले, इनको उधर ले गए. So UB minus equals to UF plus 2FB minus FB. ये जितने भी माइनस वाले टर्म है इनको RHS में ले आए, तो माइनस UF क्या हो गया तुम्हारा, प्लस UF इधर, माइनस 2FB जब उधर गया प्लस 2FB. सो इट इज UF 2FB minus FB FB. Now dividing each term by UBF. Each term by
UVF। तो देख लो क्या आ गया, UV अपान UVF, UF अपान UVF, FV अपान UVF। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लो क्या हुआ, यहां पर सिंप्लीफाई करने पर UV से UV कैंसिल, UF से U और F कैंसिल, FV से ये VF कैंसिल। क्या यहां बचा, 1 अपान F इक्वल्स टू 1 अपान V प्लस 1 अपान ये रिलेशन, 1 अपान U प्लस 1 अपान V इक्वल्स टू 1 अपान F। दिस इज करेक्ट। आ गया समझ में। लीनियर मैग्नेट है, नहीं आया। कौन बोला? राम प्रतीक्षा। तो तुम ऐसा करना, आज हमसे बात करना ना, यस अभी सर। हम वीडियो भेजेंगे ना, हमारी बात सर। सुनो, वीडियो भेजेंगे उसको जरा तुम ध्यान से देखना ना, तब तक ये PDF भी भेज देंगे ना, और फिर नहीं आया तो तुम हमसे थोड़ी देर बाद बात करना, तो हम उसी समय फिर से बता देंगे ना। और कोई है ऐसा? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या नहीं आया इसमें बताओ? चलो तुम समझना ना तब बताना, इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स से ही फुल है ये। लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, लीनियर मैग्निफिकेशन of image is defined as ratio of size of image to the size of object. Ratio of size of image to the size of object. M equals to I upon O। और अभी एक रिलेशन हम डिराइव करेंगे -B अपान U। कैसे आया? बहुत ही आसान, M इक्वल्स टू I अपान O, I अपान O क्या होगा? M होगा। And now we will see that I upon O is also equals to -V upon U। So see here, how will you deduce this relation? देख लो, ये ऑब्जेक्ट, so one ray which goes parallel to principal axis after reflection passes through focus and another ray which falls upon the mirror। दूसरी रे जो मिरर पर पोल पर पड़ती है, वो क्या है? इतना ही एंगल बनाती हुई
ये ऐसे। तो देख लो दोनों रेंज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ऐसे। तो ये आई डैश और ये आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई और आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। I is equal to R. Now all of you see here, see triangle POO dash and triangle PII dash. ये वाला ट्रायंगल POO dash and PII dash, देख लो दोनों का ये एंगल क्या है, 90 है। क्या है, एंगल POO dash equals to angle PII dash equals to 90 degree. Then angle O dash PO is equal to I dash PI. ये laws of reflection से आए समझे। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। Therefore triangle POO dash similar to triangle PII dash। और जब ये सिमिलर हो गए तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। यू कैन सी हियर व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग साइड हियर, OO dash upon II dash, O dash upon II dash equals to PO upon PI, PO upon PI। अब इनकी वैल्यूज देखें तो OO डैश क्या है, इट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का साइज है जिसको किससे डिनोट करते हैं, प्लस फोर्स। क्यों, क्योंकि अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। II डैश इज द साइज ऑफ इमेज, माइनस I इक्वल्स टू PO। PO क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, सो माइनस U, it will be minus U, PO will be minus U, and PI it will be minus V। मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाई करने पर माइनस O अपॉन I इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल U अपॉन V, या हम ये लिख सकते हैं I अपॉन O, उल्टा कर दिया, माइनस साइन उधर ले गए, equals to minus V upon U। Therefore M equals to minus V upon U। This is clear? सर हाँ, सर गीतांजलि को इन कर लीजिए। इन हो गई, आ गया समझ में। M equals to I upon O equals to minus V upon U, ये रिलेशन आ गया। अब देख लो यही फार्मूला अब हम किस में लिखेंगे, U और F के टर्म में, और यही फार्मूला V और F के टर्म में लिखेंगे। कैसे, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ये रिलेशन यूज करके हम M की एक्सप्रेशन को इस टर्म में लिखेंगे और फिर V और F ना, समझ में आया। तो देख लो M का फार्मूला क्या है, माइनस V अपॉन U। अब 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन F।
पहले 1/v देखो, 1/v कितना है? 1/f माइनस 1/u। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? u माइनस f। तो अब u/v निकाल लो, तो u इंटू 1/v, इसको u से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी u से मल्टीप्लाई करो, fu। ये किया तो देख लो, u से u कैंसिल, बचेगा क्या? u/v इक्वल्स टू u माइनस f/f। तो माइनस v/u कितना आ गया? f/u माइनस f। सो व्हाट इज माइनस v/u? माइनस साइन लगा लिया, u माइनस, इस माइनस से क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये प्लस, मतलब क्या आ गया? f/f माइनस f/f माइनस, ये आ गया। तो m का एक फार्मूला तुम्हारा क्या बन गया? f/f माइनस u। आए समझे? f और u के टर्म में। Now we will write the same formula in v and f। v and f तो देख लो, ये m इक्वल्स टू माइनस v/u, 1/u प्लस 1/v equals to 1/f। So what will be 1/u? So what will be LCM? FV। So v minus f। So 1/u equals to v minus f/fv। So what will be v into 1/u upon fv। तो देख लो, v से v कैंसिल, क्या आ गया? v minus f/f। So what is minus v/u? ये माइनस v minus f/f, that is equals to f minus v/। तो m के ये तीन फार्मूले हो गए, माइनस v/u इक्वल्स टू f/f माइनस u equals to f minus v/f। This is clear? Now see here, अब कुछ चीजें हम तुमको बता दें। लीनियर मैग्निफिकेशन, m का फार्मूला क्या है? I/O इक्वल्स टू माइनस v/u। अगर रियल इमेज होगी तो हरदम m क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? इफ द इमेज इज रियल देन m की वैल्यू कैसी होगी? m will be always negative, it will be always negative। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो m निगेटिव रहेगा अगर रियल इमेज। क्यों? क्योंकि रियल इमेज में कैसी वो बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज क्या होगी? नीचे। तो O अगर प्लस है तो I क्या है? माइनस है। सो M विल बी ऑलवेज निगेटिव। आए समझे? पर वर्चुअल है
तो उसमें क्या होगी, इरेक्ट इमेज बनती है. सो M will be always positive. Always positive. अब देख लो कॉन्वेक्स जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेज वर्चुअल एंड कैसी इमेज, मैग्नीफाइड या इरेक्ट, तो डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज. कॉन्वेक्स मिरर में हरदम इमेज का साइज कैसा होता है, डिमिनिश होता है. ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहां पर कहीं बनेगी. आए समझे? तो M की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी एंड लेस देन 1. M की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड लेस देन 1. समझ में आया? जबकि कॉन्केव में क्या है, कॉन्केव मिरर M can be पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों हो सकता. पॉजिटिव जब वर्चुअल इमेज होगा, एक केस में बनती है, निगेटिव जब रियल इमेज होगा. M can be greater than 1 or M can be equal to 1 or M can be less than 1. ये तीनों चीजें पॉसिबल. All the three things are possible. आया समझे? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, then we will take care of sign. Now see here, there is one more thing. U is always negative. Then V is negative for real image. अगर रियल इमेज लिखा है तो निगेटिव होगी, निगेटिव फॉर रियल इमेज. एंड पॉजिटिव फॉर virtual image. And third thing is concave lens की focal length, concave mirror F is negative, convex mirror F is positive. Now I will do some numericals.